आउट करता था और सब आते थे, हर्डल बनाते थे और मारना शुरू करते थे बहुत तेज तेज। तो वो सबसे तेज कौन मार रहा था? एक ही ये आदमी, रणवीर सिंह, वही प्लान करता था. Before that, I once had a feeling, that maybe I can be a cricketer also. But then I wow. eventually I have to drop the idea because I thought that there are just 11 players going to make an Indian cricket team. मैं मिलिट्री में भी जाना चाहता था, इंडियन Okay. डिफेंस में भी मैं जाना चाहता था, इंडियन आर्मी में. सो होपफुली अब वो एक रह रहा है. koimoi.com. Hello and welcome to Koi Moi. This is Shubham Kulkarni, and today in conversation with me is the man who is right now working in 83, which is about to release. Hey Jatin. Hi Shubham, how are you? I'm good. We will act like this is the first time we are introducing ourselves. Okay, first of all, 83 is a huge responsibility. You have had an amazing career behind you. Tell me, यही plan किया था हमेशा से? Is this how the trajectory was planned? Yes, ये बहुत पहले से I have decided for myself हाँ. that I want to be an actor. Before that, I once had a feeling, that maybe I can be a cricketer also. But then I Oh, wow. eventually I have to drop the idea because I thought that there are just 11 players going to make an Indian cricket team. At that time, Yes. there was no 2020, nothing. Yes. So I thought that to fit into those 11, I have to be extraordinary. Plus, there is a problem with me that I cannot, face the losing part in sports. So Okay. I hate that. So I thought that मैं अगर हारा या मुझसे अच्छा स्कोर नहीं हुआ या बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो I'll be like frustrated, which happened with me while shooting for 83. So Okay. I then only dropped the idea कि नहीं भाई, क्रिकेटर तो मैं नहीं बनने वाला हूँ. मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूं, because entertainment was always on my mind. और उसी को मद्देनजर रखते हुए आई थॉट दैट मैंने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है. बट फाइनली उस क्रिकेटर का सपना भी पूरा हो गया. यस, ये तो फॉर्चुनेटली मैं ऐसा कहूंगा कि एक्टर की जिंदगी में ये सबसे बड़ी कमाल की चीज है. हाँ. मैं मिलिट्री में भी जाना चाहता था, इंडियन Okay. डिफेंस में भी मैं जाना चाहता था, इंडियन आर्मी में. सो होपफुली अब वो एक रह रहा है. Yes. हाँ. एक रोल भी मैं आई वुड लव we are putting this out here कि हमें अब आर्मी वाला रोल चाहिए. रोल भी करना है. बिल्कुल बिल्कुल हाँ. बिल्कुल. हाँ. But 83 का कैरेक्टर, it's a real life character. You are playing someone who was alive. Tell me, वो रोल प्रिपेयर करते वक्त what are the difficulties and how did you do that? Okay, the question is interesting because लोग आज से पहले जो मैंने काम किया है, I have to imagine a character. Yes. Exactly. और I Yes. have to, bring someone out from my bank of characters that maybe Yes. मैं वो एक play कर सकता हूँ इस फिल्म में या इस series में. But with 83, you have a person in front of you, living, alive, and for me, it's not only about following the cricketing techniques, like how to bat, how to perform on field. That was one very important part of Yes. our movie, and I have to imbibe that. But for me, it was like I have to think like him. I have to Yes. behave like him. I have to, That's true. my attitude, my gesture postures, my behavior has to be like him. That is what I have always focused on before coming on for going for shooting. So I observed Yashpal Sharma sir very closely, though I have not met him much. Twice or thrice I met, but constantly I was on call with him. So whenever I used to go for shoot, a important scene, I used to call him and ask what you have done, what you Okay. have done, or what you done at that time when this was happening with you. So वो मुझे बताते थे कि ऐसा था वैसा था. तो वो मैं सुन के समझ के उनसे मैं वो करता था, क्योंकि मेरे लिए एज एन एक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है. और क्योंकि वो इंसान भी जिंदा है. अब तो खैर वो नहीं है इस दुनिया में. मगर बिफोर शूटिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि वो जब लोग उनको जो जानते हैं वो जब फिल्म देखें तो दे कैन रिलेट. स्पेसिफिकली आवर टीम कैन रिलेट. अरे हाँ यार, ये यशपाल ऐसे ही करता था. So it's been difficult, but I enjoyed the whole process. But then about his personality, he was one of those most subtle players out there. Yes. He was playful yet subtle. Tell me, सबसे difficult part क्या रहा है उनकी personality में enact करना?
सी जब हम बैटिंग करने, अभी क्या है ना, देयर इज अ हाँ, चेंज in whole cricketing thing also. At that yes, time, that's there true. were like very minimum things because they were very simple. They were not so extrovert. They were not like that. Okay, they used to Yes, cheer up or they used to do random things like yes, behaving in a very different manner. जैसा आज की cricketing उसमें होता है, you know, the हाँ, people do their own things like वो जैसा wrestling में होता था, वो कुछ हाँ, कुछ एक्शन their करते हैं, signature moves, हाँ, signature मूव जो moves जो होते हैं होते हैं, हाँ, वो बहुत सिंपल थे। हाँ, वो चीज, वो सिंप्लिसिटी ऑन फील्ड रखना, हाँ, वो एक बड़ा मुश्किल काम था। बिकॉज एवरी टाइम हम लोग जब कोई शॉट हिट करते थे तो दिल से ऐसा आता था कि यू नो रन टू योर अदर पर्सन एंड ऐसा कुछ ताली मार दी, कुछ कर हाँ, दिया, हाँ, कुछ ऐसा एक्शन दिखा दिया। तो वी वर नॉट अलाउड टू डू दैट। सो इट वाज yes, वेरी सिंपल, फिस्ट बम, दैट्स इट। या हाँ, बैट से बैट टच करा तो करा, अदरवाइज वो भी नहीं। हाँ, दूर से एक दूसरे को देखा, दैट्स इट। okay. तो But फिर ये कभी सब ऐसा हुआ नहीं? Sorry. Continue. तो यू आर सेइंग समथिंग, But प्लीज। no, I was asking कभी ऐसा हुआ नहीं कि आउट ऑफ कैरेक्टर जाकर कुछ अजीब कर दिया? करा, बहुत बार करते थे। देन फिर वहां से आवाज आती हाँ, थी कबीर सर की माइक हाँ, पे, या बल्लू सर, जो हाँ, बलविंदर सिंह संधू हमारे हाँ, कोच, वो yes, बोलते थे नहीं 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 ये नहीं होगा, ये नहीं किया था, ये नहीं करते थे हम लोग। तो वी हैव टू कंट्रोल okay, आवरसेल्व्स। नहीं नहीं नहीं। एंड स्पेसिफिकली ये होता तब था जब हम फील्डिंग करते थे। जब हाँ, फील्डिंग वाला पोर्शन हम लोग शूट कर रहे थे तब बहुत ज्यादा होता था, बिकॉज तब हर्डल बनता था, भीड़ लगती तब थी, पूरी टीम होती थी। पूरी टीम होती थी, तो कुछ कुछ हाँ, हरकतें बहुत रहती थी हम लोगों की ना। कई बार ऐसा हाँ, होता था कि पकड़ के किसी को पीट दिया, है ना, उसको थपकी दे रहे हैं जैसे, हाँ, शाबाशी में, किसी बॉलर ने विकेट ली उसको हाँ, शाबाशी देनी है, तो हाँ, उसको पकड़ के अच्छे से पैट वैट कर दिया, मार दिया पकड़ हाँ, के, ऐसा करते थे। मेरे साथ कई हाँ, बार ऐसा होता था कि मेरे, क्योंकि 2-1 रनआउट्स हैं जो मैंने किए हैं, तो okay. वो रनआउट करता था और सब आते थे, हर्डल बनाते थे और मारना शुरू करते थे बहुत तेज तेज। तो वो सबसे तेज कौन मार रहा था? एक ही ये आदमी, रणवीर सिंह, वही प्लान करता था। अच्छा, बाकी सब शरीफ थे, वही प्लान करता था कि छोड़ना नहीं है इसको। तो ऐसे कई बार हम लोग चीजें करते थे, तो वो that's true. करने में थोड़ी सी मुश्किलें आई, बट हम लोग करते करते वी वर लाइक यूज्ड टू इट देन। koimoi.com